Hello my dear students of standard 9th. Welcome to all in today's online class. My dear students, it is time to learn chemistry. So we will continue with the particular subject, that is chemistry. So dear students, chapter 4 is going on. Already it is known to you. Chapter 4, name of the chapter is structure of atom. This chapter is going on. And we are learning all the contents very carefully. And we are trying to understand all the concept clearly. So dear students, today's topic here is a valency. So before starting my new topic, let us recall all the contents which you have learned so far. So dear students, you have learned two models given by different kinds of the scientists, just like J.J. Thomson model, okay. And after that, Neil Bohr, and first of all, after first model given by the J.J. Thomson's. So Thomson models, after that Rutherford, and Rutherford, what were the shortcomings there? So Niels Bohr trying to improve the shortcomings which were found in Rutherford's model. तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो मॉडल रिप्रेजेंट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा एटम को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो मॉडल आपने देखा और उसको समझा होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक हियर इज अ वैलेंसी. वैलेंसी का मतलब होता है क्या? वैलेंसी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करना है? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? ऑल द थिंग्स इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वैलेंसी, सबसे पहले वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए, वैलेंसी को अच्छे से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स जस्ट लाइक इन KLMN सेल, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने को बताया गया था. तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन कंसर्न सेल्स जस्ट लाइक KLMN cells, energy level cells. So just like we take an example, just like sodium. What is the atomic number of the sodium? The atomic number, the sodium is 11. So if you want to distribute this one atomic number, sodium having the atomic number 11, and you want to distribute this in KLMN cell. So what will be the actual number of the electron in each cells which will be found? How can you distribute the electron? So you will distribute the electron in the these concerned cells according to the rule given by the Bohr-Waring rule, that is 2n square. Okay, 2n square, where n is the number of the cell. So we will follow that. K cell में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? How many electron will be there in K cells? That is 2. And L cells, that is 8. 8 and 2, 10. You have only one electron which you have not filled. So one electron will go in M cell, that is 1. Okay. So dear students, this is the electronic configuration of sodium 281. Atomic mass of the sodium is 23. So as you are looking that, this M cell is the outermost cells in case of the sodium. This M cell is the outermost cell of the sodium. Just we want to express this in like that. This is the first cell, okay. This is the second one, and this is the third, okay. So the electron which are revolving inside the different orbit cells, you can represent just like a 2 electron, okay. This is the electron E minus, okay, 2 electron. Then this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So as you are looking, that minus sign represents the negative sign, represents the charge on the electron, because electrons considered as the negatively charged particles. That is why we are trying to represent the negative sign on it. So negative sign represents only that. So you have filled up so far 10 electrons, then you have to fill 1 electron at the outermost cells. So dear friends, as you are looking that, this is the outermost, and neutron and proton inside lies the nucleus. यहाँ पे आपका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाई करेगा. दिस इज द फर्स्ट सेल विच इज द रिफर्ड एज द K cell, okay. This is the L cell and this is the M cell. So dear friends, in M cells you are looking that there is a 1 electron present in the outermost cells. So इस outermost cell, सबसे outermost, innermost ये है आपकी सबसे अंदर वाली, this is the innermost. This cell is the innermost, okay.
ये आपकी अंदर की सबसे इनर मोस्ट सेल, और दिस वन M cell is the outermost. Okay. So the electron present in the outermost cell, the number of electron present in the outermost cell, just consider as the valency of the individual element. किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स विच इज ऑलरेडी नोन एज द वैलेंस सेल. आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल. इसको वैलेंस सेल भी कहते हैं, इसी से वैलेंसी डिराइव हुई है. वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं. वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट डिसाइड द वैलेंसी of the individual element which you want to calculate. So what will be the actual valency of sodium? Here is according to the structure, the valency of the sodium is here is a 1, because there is a 1 electron present in the outermost cell. Outermost cells में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1. So dear students, one thing which we have to notice here is dear students, all the elements tries to have the electronic configurations just like noble gases configurations. That is why the sharing of electron and the chemical reaction takes place and compounds form. So during the formation of the compound, the outermost electron takes place. Okay, which one electron will be considered? Which one electron will play very important role in chemical reaction? Just like outermost cells. So outermost cells will combine chemically, so it will forms compound, and we will gain the compound. So the valency, that is a number of electron present in the outermost cells. So the on the basis of taking participations of valence electron, that is why valency can be defined as the combining capacity. इसलिए इसको कहते हैं combining capacity, क्योंकि ये combine होगा. कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू फॉर्म द स्टेबल कैरेक्टर. दैट इज व्हाई जस्ट वी आर लुकिंग दैट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे आप देखते हो स्टूडेंट्स कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो. जैसे किसी भी आप देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन में देखिए 1 2 3 4 5 थोड़ा दूर रखिए 6 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रखिए. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका क्या है? सोडियम का एटम है. ठीक है, ये क्लोरीन का है. This is the sodium one, this is the chlorine. So as you are looking that there is a 1 electron. So according to octet principles, there must be at least 1 or 2 electron, 8 electron. That is why it is difficult to gain the 7 electron. That is why 1 electron will be transferred to the chlorine side. That is why this will possess the positive charge, and this one will contain the negative charge. Okay. So and this will forms a special type bond that is known as the electrovalent bond. So on the basis of that, there will be the electrovalency also, which will be defined. So valency हम किसी भी कंपाउंड को कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे डिसाइड होगी? सॉरी, कंपाउंड नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल एलिमेंट. जैसे आपने अभी कहा कि सर आप तो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज रिफर्ड एज वैलेंसी. बट वैलेंसी आपकी 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक है तो वैलेंसी वही कंसीडर हो जाएगी. लेकिन उसके बाद जब 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल्स में, तो उसमें से क्या करेंगे? 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन्स present in valence cell. Then we can define the valency. वैलेंसी कब ये आपकी वैलेंसी कब डिफाइन होगी स्टूडेंट्स? ये वैलेंसी आपकी डिफाइन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आ जाए आउटर मोस्ट सेल्स में या वैलेंस सेल में. इलेक्ट्रॉन
8 से ज़्यादा आ जाए, 4 से ज़्यादा नंबर हो जाए उनकी, तो उसमें से क्या करते हैं हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस या आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, जस्ट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन में आप पहले 2 भरोगे, फिर 8 फिल करोगे, देखिए 8 to 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस इज द KLM। ओके, as you are looking here, there is a 7 electron present in the outermost cell। outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट? 7। होना कितना चाहिए? 8। इसमें कितने की डिफिशियंसी है? 1 की। तो अब यहाँ पे आप वैलेंस सेल में बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट, दैट इज वैलेंसी रिफर्स, हियर विल बी रॉन्ग बिकॉज नंबर दैट इज ग्रेटर देन 4 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें 8 माइनस 7 कर देंगे, दैट इज द 1, यू विल गेट 1। तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? दैट इज 1। वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन हियर विल बी 1। क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे कंसीडर होगी 1, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है। देखिए आउटर मोस्ट सेल्स में 4 से ज्यादा है, क्योंकि वैलेंसी 1 2 3 4 वैरी करते हैं, 1 2 3 4। अगर ये 1 2 3 4 नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स में है तो ये वैलेंसी वही कंसीडर हो जाएगी। इससे ज्यादा बड़े नंबर में अगर नंबर आता है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन। ये सोडियम की बात करें, सोडियम में आपने देखा 2 8 और 1 ही आता है, ठीक है, 2 8 1, इसमें तो आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, that is why it will consider valency here will be considered only 1. But in case of the chlorine, as you are looking that there are 7 electron, so it means you have to subtract from it to get the proper valency. So for getting the proper valency you have to subtract, because there is a greater number that is 7, it is greater than 4, that is why you have to subtract। तो हम लोग subtract करके valency ऐसे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। valency combining capacity क्यों कहा गया इसको? कंबाइनिंग कैपेसिटी इसलिए कहा गया क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इनर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। सो पार्टिसिपेशन क्या है, किसका हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं, यही केमिकल रिएक्शंस के समय, कंपाउंड फॉर्मेशन के समय ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एलिमेंट सेल। तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल्स को इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं, शेयरिंग क्यों होती है? देयर इज वन रीजन बिहाइंड दैट, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस नाउडेज नोन एज द नोबल गैसेस। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्यों करते हैं, शेयरिंग क्यों करते हैं? टू गेट द अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक अ इनर्ट गैस। नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। तो नोबल गैसेस, उनको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको ऑक्टेट बिल्कुल फिल है। ऑक्टेट कैसे फिल है? जैसे जितने भी आप देखिए, हीलियम ले लीजिए, ठीक है, नियान ले लीजिए, हीलियम का 2, नियान का 10 होता है एटॉमिक नंबर। इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पे इनर्ट गैस, नोबल गैसेस का मैंने एग्जांपल लिया, बहुत सारी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये देखिए आपके इतने इनर्ट गैसेस। तो मुझे हीलियम का एग्जांपल लेना है, तो हीलियम का एग्जांपल लोगे स्टूडेंट्स, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा के सेल में, ठीक है, L M M। और यहाँ पे अगर नियान की बात करें तो नियान में देखिए 2 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। आर्गन की बात करेंगे 18 होता है, देखो 2 8 और 8 आएगा, ठीक है। क्रिप्टॉन की बात करेंगे 36 आएगा, ठीक है, तो 36 का भरोगे 2 8 18, ठीक है, कितना बचा? 8 to 10 हो गया, 10 28 28, फिर 8 आ जाएगा आउटर मोस्ट में, देखिए। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम लोग इनका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं,
आउटर मोस्ट सेल्स में आप देखिए, आउटर मोस्ट सेल्स इनका कंप्लीटली फील्ड है। आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फील्ड। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 18 का अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसे ऑक्टेट प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं पूछा जाता है ना ऑक्टेट प्रिंसिपल। ऑक्टेट प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्टेट प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे पाया जाए 2, 8, 18 और 32 का स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वो एलिमेंट्स को स्टेबल मान लिया जाता है। जैसे हम इन केस ऑफ द इनर्ट गैस देख रहे हैं, इन केस ऑफ द इनर्ट गैस ये हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब किसका स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं? टू अटेन द स्ट्रक्चर ऑफ इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट केमिकली। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, इसीलिए आप इनर्ट गैसेस का पूछा जाए, इनर्ट गैसेस का, तो इनर्ट गैस का क्या होगा? इनर्ट गैस का बात करें तो इनर्ट गैस का वैलेंसी क्या होगी? इनर्ट गैस की वैलेंसी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। दैट इज व्हाई डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटली फील्ड। अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 - 8 आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 8 - 8 करोगे 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 8 - 8 करोगे 0 आ जाएगा। तो आप जब देखिए ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि ये किसी से कंबाइन करेंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? बिल्कुल फेल है। ऑक्टेट इज कंप्लीटली फेल्ड। इट मीन्स द एलिमेंट्स आर स्टेबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनर्ट गैस जितनी है ये सब क्या है? स्टेबल है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, कोवैलेंसी। अगर इसमें देखो लगे कोवैलेंसी, अनदर कंसेप्ट हियर इज कोवैलेंसी। अब देखिए कोवैलेंसी, कोवैलेंसी को लिए मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बताया था, ठीक है। तो कोवैलेंसी का मतलब है कि जैसे कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। कोवैलेंसी क्या है? कंबाइंस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवैलेंट कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट है कंबाइन करता है बाय शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो वो उसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये H2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन होता है, H2 गैस हो जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन दैट इज द वन, ओके। हाइड्रोजन आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल्स में, इसमें भी 1 होगा। तो अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के, तो देखिए हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते हैं, प्लस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो क्रॉस से दिखाने का मतलब है कि डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे होते हैं यहाँ पे, तो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। दैट इज व्हाई दिस विल फॉर्म्स लाइक दैट। हाइड्रोजन डॉट स्ट्रक्चर्स, ये हाइड्रोजन दैट इज क्रॉस, सो दिस विल बी फॉर्म्ड लाइक दैट। ये ऐसे आपको बना लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर इस हाइड्रोजन की बात करूंगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस हाइड्रोजन की बात करूंगा तो इसमें भी देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए 1, 2, इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने से जो लाइन बनती है, एक बॉन्ड बनता है, दैट इज द बॉन्ड हाइड्रोजन दैट इज ये। तो इसके बीच जो बॉन्ड बना दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है स्टूडेंट्स? कोवैलेंट बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। It means the electrons are not completely transferred from one element to the other elements. It means the electron will be considered as the mutual shared electron. Here is a mutual shared electron. Electron दोनों तरफ completely transfer नहीं हुआ है. There is a mutual sharing. Mutual sharing का मतलब है कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। In that case, both of the hydrogens will mutually shared. इसलिए दोनों mutually shared कर लेते हैं और that is why we get the covalent compound. There is the valency. तो valency इसलिए क्या है? हाइड्रोजन एटम shares 1 electron to achieve stability. Its covalency is 1. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 1, 1. That is why तो इसमें कोवैलेंसी कितनी स्टूडेंट्स? दैट इज 1. तो यहाँ पे कोवैलेंसी हाइड्रोजन से कितनी है? 1 है। कोवैलेंसी ऑक्सीजन की बात कर लें,
ऑक्सीजन में देखिए कोवैलेंसी in case of the oxygen that you have seen in case of the hydrogen. Now let us see in case of the oxygen. ऑक्सीजन में देखिए O प्लस O यहाँ पे बनता है तो O2 बनता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम कंबाइन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑक्सीजन एटम्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, व्हाट विल बी द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर दैट इज 8, ठीक है। 8 होगा तो 8 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स KLML में, तो 2 और 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बनाते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाते हैं। तो इस ऑक्सीजन को मैं किससे दिखा देता हूँ, डॉट से, 1 2 3 4 5 6 ये है तो 6 दिखा देते, 2 to 4 to 6। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस ऑक्सीजन को कंसीडर करना है तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। इस हाइड्रोजन के केस में ये जो गोला खींचा है इसमें देखिए 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। इसमें देखिए 2 to 4 to 6 to 8, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दोनों में हो गए। अब इसमें क्या है कि जब ये बॉन्ड बनाएगा तो अब O और O के बीच जो बॉन्ड होगा ना स्टूडेंट्स, वो डबल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड। तो कोवैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है स्टूडेंट्स, हियर इज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, आपस में बराबर की हिस्सेदारी है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों की बराबर की हिस्सेदारी है, इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी तरीके से नहीं हुए हैं। इट मीन्स दिस ऑक्सीजन की, ये वाला ऑक्सीजन इससे कहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, आप भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर लाइए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इन दोनों की शेयरिंग हो गई है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, दैट इज द O2। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी दैट इज, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इज 2 हियर। हाँ, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन द रिएक्शंस। अब देखिए कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं कार्बन से तो क्या बनता है, मेथेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ मेथेन, ठीक है। ये आपका मेथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे स्टूडेंट्स मेथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप देख सकते हो कि कार्बन है, दिस इज द कार्बन सिंगल एटम हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। You will have to represent the 4 electron in the outermost cells. That is the carbon plus hydrogen. तो हाइड्रोजन्स कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे दिखा दूंगा, क्रॉस से। इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। कार्बन के आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि कार्बन को आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का करोगे स्टूडेंट्स 2 और 4 आएगा, ठीक है। 2 और 4, दैट इज 2 and 4। इट मीन्स कार्बन को सेंटर में रख लेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, क्रॉस से, दिस वन एंड दिस। और ऑक्सीजन के कार्बन के डॉट्स दिखाए गए हैं। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस विल फॉर्म्स as you are looking that students, this one. So the whole carbon also will acquire this one, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इस हाइड्रोजन में, देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2 हाइड्रोजन में हो गए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 4 कार्बन की बात करूंगा, पूरे होल कार्बन की बात करूंगा यहाँ पे, तो कार्बन में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखिए 2 to 4 to 6 to 8। इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड कोवैलेंसी यहाँ पे है। तो इसमें अगर बात करूंगा तो कोवैलेंसी विद द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, हेंस इट्स कोवैलेंसी इज 1। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो द कार्बन एटम्स शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटैच द इनर गैस स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, म्यूचुअली शेयर कर रहा है, नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर्स। एज यू आर लुकिंग दैट देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन की कैसे शेयरिंग है यहाँ पे, दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है आपस में शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बराबरी की हिस्सेदारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की है। तो इससे क्या हुआ कि कार्बन एटम्स शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, हेंस द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन इज 4। इसलिए कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, दैट इज 4, सिंस द ईच इट हैज शेयर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम्स, हेंस द इट्स कोवैलेंसी इज और यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन इज 4 सिंस ईच हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितना शेयर कर रहा है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी वैलेंसी, दैट इज 1, और कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, दैट इज द कोवैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किए हैं। और हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 1, और कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप किसी का भी बना सकते हो। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस अरेंजमेंट, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, इस चीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे हायर क्लास में कि इलेक्ट्रॉन का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये स्टूडेंट्स एक और आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपने देखा वैलेंसी देखा, फिर कोवैलेंसी देखा, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज रिफर्ड टू द what is the electrovalency? The number of electron lost or gained by one atoms of elements to achieve the nearest inert gas electron configuration is called its electrovalency. इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वन साइड एटम से कंप्लीटली ट्रांसफर्ड किए जाते हैं, शेयर गेन और लॉस, लॉस करें या गेन करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl, सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl। तो Na के आउटर सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स, 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का आपने देखा कि 2, 8 और 7, दिस इज द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज द 7 इलेक्ट्रॉन। सो इन दैट केस we will form, there is a sodium, there is only 1 electron present in the outermost cells. In case of chlorine, okay, so in case of chlorine, as we are looking that in case of chlorine there are 7 electron present in the chlorine. तो क्लोरीन के आउटर सेल्स में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे, देखिए 1, 2, आप ऐसे दिखा दीजिए, पॉइंट से दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन को, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए आप पॉइंट से भी दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अब इसको क्या है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देगा तो इसका इनर्ट गैसेस जस्ट गेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ नियॉन गैस, नियॉन का स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे सोडियम। सो जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, गेन करते हैं, ये क्यों करते हैं, ड्यू टू द गेटिंग द स्टेबिलिटी, बिकॉज आर एलिमेंट्स वांट्स टू गेन द स्ट्रक्चर्स कॉन्फिगरेशंस जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। तो यहाँ पे एक सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इसकी तरफ। इससे क्या है कि सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, +1। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, लॉस कराया है, ट्रांसफर किया है। एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइन चला जाएगा तो इसके पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई क्लोरीन विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर लुकिंग दैट दिस वन विल फॉर्म्स द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड NaCl and the valency. What will be the electrovalency here is the electrovalency of sodium is 1 and electrovalency of the chlorine is also 1.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? So the elements which lose the electron to form the positive ions said to have the positive electrovalency, and the element which gains the electron to form the negative ions is said to have the negative electrovalency, same typically as given below. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम एटम इज 1. ओके, सोडियम एटम्स 1. सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1. क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? -1. और सोडियम की क्या हो जाएगी? +1. इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस साइंस को इंडिकेट कर रहे हैं. वैसे वैलेंसी कंप्लीट नंबर होती है. वैलेंसी इज जस्ट एज ए कंप्लीट नंबर, बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. उस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग कह पाएंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई है, तो इसलिए वैलेंसी सोडियम की कितनी हो जाएगी? +1. और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? -1. सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? -1. और सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? +1. तो सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. तो क्लोरीन क्या कर रहा है? निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है. इट मीन्स it will possess negative charge, negative respect to the number of electron. So there is a 1 electron which is obtained by the chlorine. That is why chlorine will contain negative charge -1. So electrovalency in case of the chlorine that will be -1, and sodium is giving the electron, is losing its electron. It means it will possess +1 valency. तो इस तरह यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकलता है स्टूडेंट्स. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आपने देखा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकालेंगे, कोवैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स वैलेंसी एंड ऑल द थिंग्स क्लियरली. So dear students, I hope all of you have understood all the terms clearly. So if anyone has the doubt regarding this one, so he can clarify his doubt during the online class, which will be organized on Monday, that is as per schedule. So dear students, figure out all these things which you have to discuss in online class. Thank you students for watching today's video.